حالزار سنا سنا کر تھک چکے ہیں، لیکن درد کا مداوع ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ سر ٹیم تو بہت عالی، 3 مہینے ہو گئے سلسلہ چل رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی ڈی ایم آ رہا ہے، کبھی ایس ڈی ایم آ رہا، کبھی کوئی ادھیکاری آ رہا، لیکن آج تک ہماری کوئی سمسیا پوری نہیں ہو پا رہی۔ بچے مرے جا رہے ہیں، ان کی دوائی کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے، سردی آ رہی ہے، جو ہے یہ ٹپک رہی ہیں، ان کی ترپال جو ہے اگر جا کر کے دیکھو صبح ہی تو ان سے شبنم ٹپکتی ہے، ہمیں نہیں کوئی امید لگ رہی کہ آج بھی کچھ ہونے والا ہے۔ Camps in Shamli and Muzaffarnagar districts, and we are doing so, and we will submit our report to the commission accordingly. مظفر نگر اور شاملی کے ریلیف کیمپوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قومی اقلیتی کمیشن کا ایک رکنی ورگ جلد ہی مظفر نگر کا دورہ کرے گا، یہ کہنا ہے کمیشن کے چیئرمین وجاہت حبیب اللہ کا۔ سینئر صحافی قربان علی سے بات چیت کے دوران کمیشن کے چیئرمین نے یہ بات کہی۔ کئی 100 لوگ ابھی باقی ہیں اور وہاں کے حالات جیسے یہ میڈیا وغیرہ میں بھی رپورٹس آئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہماری جو ممبر ہیں ہمارے اقلیتی کمیشن کی بیگم فریدہ عبداللہ خان، یہ اب جا رہی ہیں وہاں دوبارہ۔ ہم نے یہ جائزہ لیا ہے کہ جب تک کہ وہاں جو لوگ ہیں اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے گھر نہ دوبارہ بسائیں تب تک کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ معمول پہ حالات بنے تو وہ بہت مشکل ہے۔ ناظرین، قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین سے قربان علی کی تفصیلی بات چیت دیکھیے ای ٹی وی اردو پر خصوصی پروگرام خاص ملاقات میں کل دوپہر 1:30 بجے۔ مظفر نگر کے فساد متاثرین کے لیے کانپور میں ایک امدادی کیمپ لگایا گیا ہے۔ محمد علی جو فرینڈز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام لگائے گئے اس کیمپ کے ذریعے لوگوں کو امداد کی اپیل کی گئی ہے۔ اس امدادی کیمپ میں لوگوں نے فساد زدگان کے لیے دل کھول کر تعاون کیا۔ افراد اپنے گھر سے بے دخل ہو گئے تھے، بے گھر ہو گئے تھے اور اس میں تمام لوگوں کی جانیں گئی تھیں۔ اس کے بعد آج 3 مہینے کے باوجود اس بھیشن ٹھنڈ میں، کڑاکے کی ٹھنڈ میں ان بے سہارا لوگوں کا ریاستی حکومت سہارا نہیں بن رہی ہے۔ وہاں کے لوگ ٹھنڈ سے 62 بچے اب تک موت کو منہ میں سما چکے ہیں۔ ایسے حالات میں انسانیت کے ناطے ہم نے کانپور سے ان کی مدد کے آغاز کیا ہے، مدد کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ حیدرآباد میں میانمار کے پناہ گزینوں میں حیدرآباد زکوٰۃ ٹرسٹ کی جانب سے روزمرہ کی ضروری اشیاء، گرم کپڑے، کمبل اور بلینکٹس تقسیم کیے گئے۔ پناہ گزینوں نے آندھرا پردیش حکومت اور مختلف تنظیموں کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں حیدرآباد میں امن و چین کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں لگ بھگ 2000 میانمار کے مسلم پناہ گزین حکومت ہند کی اجازت سے شہر کے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم حیدرآباد زکوٰۃ ٹرسٹ کے دفتر میں شمالی امریکہ کی 2 مسلم تنظیموں مرسی USA اور چلڈرن اسلامک آف کینیڈا کے تعاون سے 500 برمی مسلم پناہ گزین خاندانوں کو موسم سرما کے لیے امداد تقسیم کی گئی۔ اس سلسلے میں فی خاندان غذائی اجناس، کمبل، گرم ملبوسات اور 500 روپیے حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر برمی پناہ گزینوں نے حیدرآبادی تنظیموں اور حکومت آندھرا پردیش کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم، میرا نام شمشو ہے، میں برما کا مونگو شہر کا رہنے والا ہوں۔ وہاں ہمارے 2012 میں دنگے کی وجہ سے ہم لوگ یہاں ہندوستان میں آئے ہیں، بہت تکلیف سے آئے ہیں ہم لوگ یہاں، اور ہمیں یہاں بہت سے لوگوں نے مدد کیا ہے، اور یہ فیڈ آرگنائزیشن بھی مدد کر رہی ہے، سلما بھی مدد کیا، سیاست والے نے بھی مدد کیا ایک بار، اور یہاں کے سرکار سے ہم بہت شکر گزار ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو سکون اور شانتی سے رہنے دے رہے ہیں۔ اچھا بہت کچھ پرابلم نہیں ہے چلنے پھرنے کے لیے، تو ایک پرابلم ویسا ہے جو ہمارے جو برما کا ریفیوجی ہے سب بچہ علم کے لیے تو بہت تمنا ہے، لیکن جو فیسلٹی ہونا ہے وہ نہیں ہے۔
ये जो एक इंस्टीट्यूट बना के उसमें बच्चों को पढ़ा रहे, उसमें कुछ बच्चों के लिए बुक की जरूरत है, एक टीचर की जरूरत है, लोकल यहाँ लैंग्वेज आने के लिए। बर्मी पनाहगुज़ीनों में इमदाद की तकसीम के मौके पर इन खानदानों के लिए रिलीफ के अलावा इन्हें बावकार जिंदगी गुजारने की तरफ रागिब करने के लिए मर्द और खवातीन को खुद रोजगार के लिए वसाइल फराहम करने का इरादा जाहिर किया गया। तकरीबन 1000 बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें, और इंशाल्लाह इन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी इन लोगों को भी तरजीह दी जा रही है ताकि वो लोग अपने ठेले या वेजिटेबल्स की दुकानें शुरू कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से गुज़श्ता 3 सालों से म्यांमार के हजारों मुस्लिम खानदानों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पनाह दी जा रही है। इन पनाहगुज़ीनों का मानना है कि इनके वतन म्यांमार में अशरार की जानिब से इन्हें मुसलसल सताए जाने के बाद वो अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान आए हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कानपुर में एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में मुतालबा किया गया कि जेलों में बंद जो कैदी अपनी सजा की मियाद पूरी कर चुके हैं उनको फौरी तौर से रिहा किया जाए। हुकूमत से यह भी मुतालबा किया गया कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए खास इक़दाम किए जाएं। बेंगलुरु के करीब वाक़े छोटे से शहर बंगारपेट में बैतुल-माल के जरिए मुकामी मुसलमानों ने न सिर्फ फलाही काम अंजाम दिए बल्कि मिल्लत के गरीब बच्चों को तालीम से रूशनास कराने की काबिल रश्क कोशिश भी की है। पेश है रऊफ अहमद हल्लूर की ये रिपोर्ट। माजी के मुकाबले आज के मुस्लिम समाज में बैतुल-माल की अहमियत और इफादियत पर भले ही कम तवज्जो दी जा रही हो, लेकिन बेंगलुरु से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े बंगारपेट शहर के हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। यहाँ के मुसलमान आज भी समाजी और तालीमी मसाइल के हल के लिए बैतुल-माल से वाबस्ता हैं। 1957 में शहर के समाजी कारकुन मरहूम सैयद मुनीरुद्दीन और दीगर साहिब खैर हजरात ने मिलजुल कर इस्लामी बैतुल-माल कायम किया था। बैतुल-माल के कयाम का एक अहम मकसद तालीम को फरोग देना था। ये बैतुल-माल का ही नतीजा है कि बंगारपेट शहर में आज इस्लामी बैतुल-माल IBM के नाम से 3 तालीमी इदारे कायम हैं। तकरीबन 1500 तलबा इन इदारों में जेर तालीम हैं। बैतुल-माल का इदारा जो है 1957 में चंद मुखलिस लोगों ने उस वक्त पर कायम किया था और उस वक्त उनके अगराज और मकासद में एक अहम मकसद तालीम को फरोग देना भी था। और उस वक्त के हालात के एतबार से जो गरीब लोग हैं उनके कारोबार में मदद करना, माली मदद करना और गरीब लड़कियों की शादी में इमदाद करना, गरीब बच्चों की सुन्नत इब्राहिमी करना वगैरह शामिल थे। और ये इदारा बढ़ता बढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह अब इस स्टेज पर आया है कि ये इस्लामी बैतुल-माल के तहत में इस्लामी IBM इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और PU कॉलेज, ये 3 इदारे चल रहे हैं। बंगारपेट में इस्लामी बैतुल-माल के तहत तालीमी इदारों के साथ गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, तिब्बी इमदाद, गरीब लड़कियों की शादी के लिए इमदाद और दीगर फलाही सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। सिर्फ बंगारपेट में ही नहीं, सभी इलाके में, सभी गांव में, सभी शहर में इस जैसा इदारा होना चाहिए और इस जैसा प्रोग्राम भी होना चाहिए। इस्लाम ने अपने मानने वालों को बैतुल-माल का वाज़े नजरिया दिया है ताकि हाजतमंदों की हाजत रवाई की जा सके और किसी को मोहताजी की जिंदगी बसर न करना पड़े। कर्नाटक के छोटे से शहर बंगारपेट के साहिब हैसियत मुसलमानों ने तकरीबन 60 साल कबल ही बैतुल-माल की अहमियत को समझते हुए मकामी मुसलमानों की तालीमी और समाजी हालत को बदलने की कोशिश का आगाज किया था। आज उनकी कोशिशें समर आवर साबित होती दिखाई दे रही हैं। ETV न्यूज बंगारपेट, बेंगलुरु। नजर खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से,
तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। बेंगलुरु में आज जनूबी हिंद के अक़लियती NGOs की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कौमी अक़लियती तरक्याती और मालियाती कॉरपोरेशन के तहत मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए जारी स्कीमों और प्रोग्रामों की जानकारी दी गई। मुक़र्रिरीन ने कहा कि सरकारी स्कीमों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए NGOs का सरगर्म और फ़ाल रहना जरूरी है। बेंगलुरु में जनूबी हिंद के अक़लियती NGOs की एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई। कौमी अक़लियती तरक्याती और मालियाती कॉरपोरेशन के तहत मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धारमैया ने अक़लियतों की फलाह के लिए हुकूमत की पॉलिसियों का जिक्र करते हुए अमली इक़दामात का बखान किया। रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम ने अक़लियतों में बेदारी के ताल्लुक से रोशनी डाली। Financial assistance from rupees 50 lakh to 1 crore at district level and from rupees 20 lakh to 50 lakh at taluka level for the construction of Shadi Mahal or community hall. I hope the NGOs would rise to the occasion and act as our ambassadors and help the minority community, especially women. This year, almost all we have started. This year buildings will also be given for this programming centers in which awareness will be there for giving training to the NGOs. Up-to-date information will be given. इजलास में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सच्चर कमेटी की 90% सिफारिशात को नाफिज किया है। With the right to information. If any Tahsildar, any DC has not been implementing the program, you need not come to the Chief Minister, you need not come to the Minister. You can immediately ask the Tahsildar how much houses have been allocated under 15-point program, how much house you have given. You ask, you have given that right, that power. Why are you not utilizing that power? इजलास में NMDFC की स्कीमात की जानकारी पर मुश्तमिल ब्राउचर का कन्नड़ी जबान में इजरा अमल में आया। ETV न्यूज बेंगलुरु। बेंगलुरु में अक़लियतों की स्कीमों के तय बेदारी पैदा करने के लिए मुनक़िदा प्रोग्राम में बैक वक्त वज़ीर आला और रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के नींद में गर्क होने का मंजर देखने को मिला। एक जानिब मरकजी वज़ीर के रहमान खान का खुतबा जारी था तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिद्धारमैया और वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम बड़ी मुश्किल से अपनी नींद पर काबू पा रहे थे। इसे आप लीडरों की थकावट कहें या कुछ और, लेकिन कॉन्फ्रेंस के हॉल में मौजूद लोगों की कसीर तादाद यही महसूस कर रही थी कि बेदारी के मकसद के लिए मुनक़िदा इजलास भले ही उनके लिए खास हो, लेकिन लीडरों के लिए तो ये एक रिवायती इजलास है। हैदराबाद के सालारजंग म्यूजियम में उर्दू जरिए तालीम और हमारी जिम्मेदारियां के उन्वान से एक सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और स्कॉलर्स ने शिरकत की और अपने मकाले पेश किए। अंजुमन तरक्की व बकाए उर्दू ने कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू के इश्तराक से सेमिनार का एहतमाम किया था।
मेडिकल के मैदान में रोज नए नए तजुर्बात सामने आ रहे हैं। तिब्बी मैदान में लेजर फिजिक्स एक ऐसा तरीका इलाज है जो सर्जरी के साथ साथ भारी सनत में भी कारआमद हो सकता है। लेजर फिजिक्स को अब तलबा और तालिबात करियर के तौर पर अपना रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम तलबा और तालिबात भी शामिल हैं। कानपुर में मुनक्किद होने वाले लेजर वर्कशॉप में साइंसदानों ने ये बताने की कोशिश की कि लेजर फिजिक्स का इस्तेमाल जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में किस तरह किया जा सकता है। इस वर्कशॉप के माध्यम से दरअसल हमारा ही कॉलेज क्राइस्टचर्च कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां पर लेजर की सारी सुविधा उपलब्ध है। हम अपने साथियों को जो हमारे दूसरे महाविद्यालय के हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारी सुविधाओं को वो यहाँ से सीख करके, बल्कि हम उनके कॉलेज में भी जाकर के ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जिससे फिजिक्स को वो आसानी से अपने बच्चों को समझा सकें। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों के अलावा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। वर्कशॉप में मुस्लिम तलबा और तालिबात भी खासी तादाद में शामिल हुए। कुछ बच्चे लेजर फिजिक्स को बतौर करियर अपनाना चाहते हैं। लेजर एक मोनोक्रोमेटिक बहुत शार्प और इंटेंस लाइट की बीम होती है, तो इससे हम लोग मेडिकल में बहुत हेल्प मिलती है हम लोगों को। ब्यूटी से जो रिलेटेड जो होती हैं प्रॉब्लम्स, उसमें जैसे एक्नेस वगैरह की स्किन की प्रॉब्लम्स हम लेजर से दूर करते हैं। यानी कि मेडिकल फील्ड में इसका बहुत यूज है। उसके बाद हम कार्बन लेजर को यूज करते हैं एज अ कटर। आगे आने वाले समय में लेजर का काफी हद तक यूज होगा और हम अभी लेजर के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी क्लास में भी है, सिलेबस में भी ये प्रेजेंट है लेजर, तो उसके बारे में काफी कुछ हम जान रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है यहाँ पर। सिक्योरिटी पर्पज में आजकल काफी यूज हो रहा है। जैसे आपने देखा कई मूवीज जो आती है उसमें सिक्योरिटी कैमरे के रूप में या सिक्योरिटी लेजर लाइट होती हैं जो हार्मफुल भी हो सकती हैं, और इसका लार्ज रेंज तक के लिए यूज होता है। डिफ्रैक्शन कम होने के कारण लेजर लाइट जो है फैलती नहीं है, इसलिए इसका लार्ज रेंज के लिए काफी यूज होता है। वर्कशॉप में शिरकत करने वाले साइंसदानों ने बताया कि मुस्तकबिल में इस इल्म का इस्तेमाल नाजुक किस्म की सर्जरी से लेकर स्टील की भारी सनतों में भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महकमे सेहत ने मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के पनाहगुजीन कैंपों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर एसके त्यागी ने कहा कि ठंड और बारिश की वजह से पनाहगुजीन कैंपों में रहने वाले अफराद की सेहत मुतासिर हो सकती है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने मजीद कहा कि खासतौर पर छोटे बच्चों, ज़ईफ अफराद और ख्वातीन की सेहत को ज्यादा खतरा है। एसके त्यागी का कहना है कि ज़ईफ अफराद का निजाम तनफीस मुतासिर हो सकता है। मारूफ नगमा निगार और मकानमा निगार जावेद अख्तर को उनकी किताब लावा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इनकी ये किताब नज़्मों का मजमुआ है जो 2011 में शाये हुई थी। साहित्य अकादमी अवार्ड जावेद अख्तर से पहले गुलजार, निदा फाजली और सलाम बिन रज़ाक को मिल चुका है। जावेद अख्तर ये अवार्ड पाने वाले चौथे शायर हैं। उर्दू के मारूफ शायर, नगमा निगार और मकालमा निगार जावेद अख्तर को साहित्य अकादमी अवार्ड से सरफराज किया गया है। जावेद अख्तर को ये अवार्ड उनके मजमुए कलाम लावा पर दिया गया है। ये किताब 2011 में मंजर आम पर आई थी जो उर्दू हल्के में काफी पसंद की गई। जावेद अख्तर का पहला मजमुए कलाम तरकश है। इस किताब को भी खासी पजीराई मिली थी। जावेद अख्तर को शायरी में कमाल हासिल है। जहाँ उनकी गजलें मकबूल हैं, वहीं उनकी नज़मों का भी एक अपना मकाम है। अदबी हल्के का मानना है कि ये अवार्ड जावेद अख्तर को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। साहित्य अकादमी अवार्ड जावेद साहब जैसी शख्सियत को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, और बहुत खुशी की बात है कि उन्हें उनके दूसरे मजमुए कलाम लावा पर इनाम तफवीज़ किया गया है। हालांकि इनाम उन्हें तरकश पर भी मिल सकता था, मगर खैर। जावेद अख्तर की गज़लें, जावेद अख्तर की नज़में बेपनाह मकबूल हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे शहर के, मुंबई के बहुत बड़े, बहुत अहम शायर को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, मैं पूरी उर्दू दुनिया को मुबारकबाद देता हूँ। जावेद अख्तर को न सिर्फ शायरी की दोनों असनाफ यानी गजल और नज़्म पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है, बल्कि उनकी मकालमा निगारी ने भी धूम मचाई है। उनकी यादगार फिल्मों में शोले, जंजीर, दीवार, शक्ति, त्रिशूल, अंदाज, हाथी मेरे साथी के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं। एक सुरंग बनने वाली है, बहुत अच्छे, लेकिन तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। जावेद अख्तर को मॉडर्न शायर भी कहा जाता है।
जदीद लहजे और मुनफरिद अंदाज के साथ उन्होंने अपनी एक अलग राह चुनी। गजल हो या नज्म, उन्होंने इंफरादियत का अंदाज अपनाया। वो खुद भी कहते हैं कि जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। जावेद अख्तर को साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाने का पूरी उर्दू दुनिया ने खैर मकदम किया है। ईटीवी भी जावेद अख्तर को मुबारकबाद पेश करता है। ईटीवी न्यूज मुंबई। नजर खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। रसिक मित्र मंडल के ज़ेर एहतमाम पुणे में मीर तकी मीर हयात और फन के उन्वान से एक तौसीई खुतबे का एहतमाम किया गया। तौसीई खुतबे में पुणे के अदीबा मुमताज मुनव्वर पीर भाई ने शिरकत की और मीर तकी मीर के हयात और उनकी शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। पेश है एक रिपोर्ट। पूना में रसिक मित्र मंडल का क़याम 30 साल कबल अमल में आया था। रसिक मित्र मंडल के क़याम का मकसद मुख्तलिफ ज़बान और अदब के शोरा व उदबा को एक स्टेज पर लाना और उसके तवस्सुत से ज़बान और अदब के बीच बाहमी रब्त पैदा करना है। तंजीम के ज़ेर एहतमाम हर माह किसी एक मौजू पर तौसीई खुतबे का एहतमाम किया जाता है। इस बार तौसीई खुतबे के लिए मीर तकी मीर हयात और खिदमात मौजू का इंतखाब किया गया। सोसाइटी का मकसद मराठी अदब के साथ उर्दू अदब को फरोग देना है। हम सब जितने उर्दू, मराठी, हिंदी, गुजराती के आद्य कवि जिसको कहते हैं, जो सबसे पहले गुजरे हैं, जिन्होंने बुनियाद नींव डाली है, उन लोगों के ऊपर हम लोगों को उसको मालूमात देना चाहते हैं। यानी जैसे केशव सूद के ऊपर हो गया, दलपत और नरमत के ऊपर हो गई, वैसे गालिब के ऊपर एक तकरीर हो गई, वैसे मीर तकी मीर के ऊपर भी रखी गई है। रसिक मित्र मंडल के जरिए हर माह के दूसरे हफ्ते में अदबी मौजू पर तौसीई खुतबे का एहतमाम किया जाता है। सोसाइटी की 30वीं सालगिरह के मौके पर खुदा सुखन मीर तकी मीर के उन्वान से मुनक्किदा तौसीई खुतबे में अदीबा व शायरा मुमताज मुनव्वर पीर भाई को मदऊ किया गया। मुमताज मुनव्वर पीर भाई ने अपने तौसीई खुतबे में मीर के अहद शायरी के साथ ज़बान व बयान पर भी तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रसिक मित्र मंडल ने मुख्तलिफ ज़बानों के शोरा व उदबा पर जो तौसीई खुतबे के इनकाद का सिलसिला शुरू किया, इससे न सिर्फ मुख्तलिफ ज़बान व अदब के अहल कलम एक मंच पर आएंगे, बल्कि इसके जरिए उर्दू वालों को भी दूसरी ज़बानों के अदब को करीब से समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने मीर को इसलिए चुना क्योंकि गालिब की वजह से उस जमाने के जितने शोरा थे वो सारे जरा दब से गए हैं। बहुत जो खास तौर पे जो उर्दू ज्यादा नहीं जानते उन लोगों को ये शोरा के बारे में बहुत कम मालूम है। जैसे मीर हुए, ज़ौक़ हुए, ये नॉन उर्दू लोग उनको नहीं जानते। तो उन लोगों को उजागर करने के मकसद से मीर के ताल्लुक से बात की गई और उनको चुना गया। रसिक मित्र मंडल के ज़ेर एहतमाम इस तौसीई खुतबे का इनकाद पुणे के पत्रकार भवन में किया गया। तकरीब में पूना की मुख्तदिर शख्सियात ने शिरकत की और इस तरह की तकरीब को वक्त की जरूरत से ताबीर किया। ईटीवी न्यूज पूना।
حضرت امیر خسرو کی تعلیمات اور یکجہتی اور بھائی چارگی کے لیے تصوف، موسیقی اور نظموں کے ذریعے ان کی خدمات کو پیش کرنے کے لیے حیدرآباد میں جشن خسرو کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 28 دسمبر کو جوبلی ہال باغ عامہ میں افتتاحی اجلاس منعقد ہوگا، جبکہ للیتا کلاتھورنم باغ عامہ میں موسیقی ریس پروگرام رنگ خسرو کے عنوان سے منعقد کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے آندھرا پردیش مائنورٹی کمیشن، عثمانیہ یونیورسٹی، آندھرا پردیش ٹورزم، نیشنل کمیشن فار کمیونل ہارمونی اور اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور جو مقصد یہ فیسٹیول کا ہے یہ ہے کہ سیکولرزم، نیشنل انٹیگریٹی اور بردرہڈ، یہ میسج ہم ہر آدمی تک پہنچائیں انڈیا کے۔ اور جب یہ میسج کچھ ہم ایک اسپیچ میں بولتے ہیں یا کسی پریس نوٹ میں دیتے ہیں تو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا جتنا ایک کلچرلی ایک فیسٹیول میں، ایک آرٹ میں ہم لوگوں تک پہنچائے۔ جس طریقے سے اسپورٹس سے پہنچاتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے۔ اور آج ہمارا ملک جب کمیونلزم کا سامنا کر رہا ہے سے کرے، جو حضرت امیر خسرو کی تعلیمات تھی اسی کو ہی ہم جو سو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا اس میں کوئی کمرشل آبجیکٹ نہیں ہے، کمرشل ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، تو ہم پیورلی جو حضرت امیر خسرو کی کوشش تھی، جو ان کے ایجادات تھے، جو ان کے کارنامے تھے، جو ان کا جو خدمات تھی، جو ان کے تعلیمات تھے، جو ان کے اسلاف تھے، یہ ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ دہلی کی غالب اکیڈمی نے سردار جعفری اور ہماری شعری روایت کے عنوان پر ایک خصوصی لیکچر منعقد کیا۔ اس سیمینار میں مقررین نے سردار جعفری کی ادبی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا ہے کہ سردار جعفری صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک بہترین تنقید نگار، نثر نگار اور دانشور تھے۔ جونپور کے مرکزی امام بارگاہ میں شب بیداری کا اہتمام کیا گیا۔ 15 گھنٹے تک متواتر شب بیداری کے دوران شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم و نوحہ خوانی کی گئی۔ انجمن جعفریہ کی جانب سے پیش کی گئی نوحہ خوانی میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے پرنم آنکھوں سے شرکت کی۔ ناظرین، خاص بات میں فی الحال اتنا ہی ہے۔ اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو۔ سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں۔
السلام علیکم، آداب عرض ہے صبح بخیر، دل سے ویری ویری گڈ مارننگ خواتین حضرات. ایک نئی خوبصورت سی ٹھنڈی ٹھنڈی صبح میں جی ہاں ہم اور ہماری دل سے کی انٹائر ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دعا اور امید یہی کرتے ہیں آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، مزے میں ہو، سکون میں ہو، اور اس لمحے اس مومنٹ ہمارے ساتھ جی ہاں دل سے شامل ہو چکے ہوں. اور ظاہر ہے اس بات کو ہرگز انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا ہے کہ فائنلی سردی اپنے پورے شباب پر آ چکی ہے. ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں بڑی زبردستی سردی ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے پروگرام کی ابتدا آج اسی میسج کہہ لیں یا اسی بات سے کہنا چاہیں گے کہ اس خاص زبردست سی غضب کی سردی میں اپنا بہت اچھا آپ کو خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا بہت اچھا خیال رکھنا ہے. اور خاص طور پر اگر اسپیشلی یس آف کورس اگر گھر میں کوئی بزرگ ہیں یا کوئی بڑے بوڑھے ہیں تو، اور اگر ان کی خدا نخواستہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ پلیز 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 ان کا بہت